student, in last lecture we have studied inverse sine function, inverse cosine function and inverse tangent function. Today we are going to see inverse cosec function, inverse sec function and inverse cot function. So first is sec inverse function. See here, we have given a function sec from the interval 0 to pi minus pi by 2 to the r minus interval minus 1 to 1. यहाँ पर हमने जो डोमेन है उसमें से पाई बाय 2 को निकाल दिया है, सब्ट्रैक्ट किया है. क्यों किया है ऐसे? क्योंकि पाई बाय 2 के लिए सेक फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो इसीलिए हमने 0 से पाई के बीच में से पाई बाय 2 ये वैल्यू निकाल दी है और उसको मैप किया है ऑन रियल नंबर. अगेन वी subtract minus 1 and 1 from the real number because again for that the function is not defined, and we can see this from the graph. The function is bijective and therefore its inverse exists and is defined as sec inverse is the function now from r minus 1 to 1 to 0 to pi minus pi by 2. Sec inverse of y is equals to x if sec of x is equals to y. So here x belongs to 0 to pi minus pi by 2 and y belongs to real number minus interval minus 1 to 1. तो यहाँ पर जो x है उसे कहा जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स फंक्शन. इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू जो सेक इनवर्स फंक्शन है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्लोज इंटरवल 0 टू पाई के बीच में है, सिर्फ पाई बाय 2 को वहां से निकाल देना है. सो हियर we have some example. Sec inverse of 2 upon root 3 is equals to pi by 6 because sec of pi by 6 is equals to 2 upon root 3. इसका मतलब principal value of sec inverse 2 upon root 3 is pi by 6. Similarly, sec inverse of minus root 2 is pi minus pi by 3. यहाँ पर हमने pi minus pi by 4 क्यों किया है? क्योंकि जो वैल्यू थी वो 0 से पाई के बीच में नहीं थी माइनस रूट 2 के लिए, तो वो जो प्रिंसिपल वैल्यू आई अब है पाई माइनस पाई बाय 4 दैट इज 3 पाई बाय 4. तो ये 0 से पाई के बीच में है और प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है. सेक इनवर्स ऑफ 1 इज 0, सेक इनवर्स ऑफ माइनस 1 इज इक्वल्स टू पाई. So coming to the next function, that is cosec inverse function. Again consider the function cos from minus pi close interval minus pi by 2 to pi by 2 minus 0 to real number minus open interval minus 1 to 1. Here again the function is 1 1 and on 2, that is bijective, therefore its inverse must exist. Therefore the inverse function exists and is defined as cosec inverse is from r minus 1 to 1 to close interval minus pi by 2 to pi by 2 minus 0 is defined as cosec inverse of y is equals to x if cosec x is equals to y. यहाँ पर भी हमने cosec फंक्शन के डोमेन में से 0 निकाल दिया. ग्राफ के ऊपर से आप लोग देख सकते हो कि अगर वो वैल्यू हम लेते हैं तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता है. कोसेक इज नॉट डिफाइन एट 0, देयरफॉर वहां से हमने डोमेन में से 0 को निकाल दिया. तो कोसेक इनवर्स का भी जो डोमेन है वहां से हमने माइनस 1 to 1 को निकाल दिया है क्योंकि वहां पर भी वो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता है. तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर विच वन इज डोमेन एंड विच वन इज codomain of the given function. So here x belongs to the interval minus pi by 2 to pi by 2 minus 0 is the principal value of the cosec inverse function. So here are some example for the principal values. Cosec inverse of 2 upon root 3 is pi by 3, as again we know that cosec pi by 3 is equals to 2 upon root 3. Cosec inverse of minus root 2 is equals to minus pi by 4. Cosec 1 is equals to pi by 2 and cosec inverse of minus 1 is equals to minus pi by 2. And the last cot inverse function, consider the function cot from open interval 0 to pi to real number, and we can see the from the graph it is bijective, that is 1 1 and on 2, hence inverse exists. Therefore cot inverse is the function defined from r to 0 to pi is
cot inverse of y is equals to x if cot of x is equals to y. You can see it is clear from the graph. The given function cot, first graph is for cot and the second graph is for cot inverse. तो पिछला लेक्चर और इस लेक्चर में हमने जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे हैं, वहां पर जो डोमेन है और रेंज है वो सब हमने देखी है. साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स के लिए. द वैल्यू ऑफ द फंक्शन in the range is called as principal value of the inverse trigonometric function. तो sin inverse function के लिए जो range है वो है from close interval minus pi by 2 to pi by 2. Therefore, जब आपका sin inverse के लिए example दिया होगा find the principal value of sin inverse, तो आपकी जो वैल्यू है वो क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में होनी चाहिए. कॉस इनवर्स के लिए रेंज है 0 टू पाई, अगेन क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इज 0 टू पाई. फॉर tan इनवर्स प्रिंसिपल वैल्यू इज ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. मतलब अगर ओपन इंटरवल है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के लिए, तो tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू उस इंटरवल के बीच में है. फॉर कोसेक इनवर्स इट इज क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 माइनस 0. अब यहां से हमने 0 को क्यों निकाल दिया है आपको पता है, क्योंकि वहां पर फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट या फिर नॉट डिफाइंड है. सेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू है क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, उसमें से हमने पाई बाय 2 को निकाल दिया है. सो 0 टू पाई के बीच में की कोई भी वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू हो सकती है एक्सेप्ट पाई बाय 2. कॉट इनवर्स के लिए आपका ओपन इंटरवल 0 टू पाई है. 0 टू पाई के बीच में अगर कोई भी वैल्यू आपकी आती है कॉट इनवर्स फंक्शन के लिए, सो दैट वन इज प्रिंसिपल वैल्यू फॉर द कॉट इनवर्स. तो यहाँ पर जो रेंज है, ईच एंड एवरी फंक्शन की जो रेंज है वो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन है. So here is a note for you. You can see from this all, sin inverse of sin x is equals to x for x belongs to minus 1 to 1. साइन का जो रेंज है वो माइनस 1 से 1 के बीच में है, तो इसीलिए साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू x अगर आपका x माइनस 1 टू 1 के बीच में है. सो सिमिलरली साइन इनवर्स ऑफ sin y is equals to y. What is the range of sin inverse function? It is minus close interval minus pi by 2 to pi by 2. तो आगे के भी जो दिए हुए हैं वो सेम उसी तरह से है. cos इनवर्स cos ऑफ cos इनवर्स x is equals to x. cos का जो रेंज है वो भी फिर से माइनस 1 टू 1 के बीच में है, तो cos इनवर्स ऑफ cos y is equals to y. cos इनवर्स की जो रेंज है वो 0 टू पाई के बीच में है, तो इसका यूज करके आप दिए हुए फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. सी ऑल द नेक्स्ट tan इनवर्स tan ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू x. x बिलोंग्स टू रियल नंबर. tan इनवर्स ऑफ tan y इज इक्वल्स टू y फॉर y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, क्योंकि वो उसकी रेंज है tan इनवर्स की. cosec of cosec inverse x is equals to x. You can take this one if only x belongs to r minus रियल नंबर में से आपको ओपन इंटरवल माइनस 1 टू 1 को निकाल देना है, तो आप cos ऑफ cosec इनवर्स x इज इक्वल्स टू x ले सकते हो. cosec इनवर्स cosec y इज इक्वल्स टू y ओनली इफ y बिलोंग्स टू द इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 माइनस 0. यहाँ से आपको क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में से 0 को निकाल देना है. सो यू कैन टेक sec cosec inverse of cosec y is equals to y. Sec of sec inverse x is equals to x. Again, x belongs to real number except minus 1 to 1. Cosec inverse sec inverse sec y is equals to y for y belongs to open interval 0 to pi minus pi by 2, and cot of cot inverse x is equals to x for x belongs to real number, and cot inverse of cot y is equals to y for y belongs to open interval 0 to pi. So let's see some examples on the principal value of the trigonometric function. यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से हम principal value find out कर सकते. तो first example is find the principal value of the sin inverse of half. So solution हमें इस तरह से लेना है. Let sin inverse of half is equals to x. तो sin inverse को अगर हम x के साइड पर लेकर जाए तो वो हो जाएगा sin x is equals to half. अब हमें पता है कि sin of pi by 6 is equals to half है, तो हम sin x is equals to हाफ के जगह पर अब लेंगे sin pi by 6. So sin x is equals to sin pi by 6. So we can take x is equals to pi by 6. फिर से यहाँ पर pi by 6 जो है वो
साइन इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू में आता है, रेंज में आता है कि नहीं वो देखते। π/6 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, उस रेंज में है, तो हम इसको साइन इनवर्स हाफ की प्रिंसिपल वैल्यू कह सकते हैं। आपको देखना है कि जो वैल्यू आप ले रहे हो वो वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू मतलब दिए हुए साइन इनवर्स या जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके रेंज में है या नहीं। अगर रेंज में है तो आप उसको डायरेक्टली प्रिंसिपल वैल्यू कह सकते हो। तो दिए हुए एग्जांपल के लिए आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है π/6। नेक्स्ट एग्जांपल, we have to find out the principal value of tan inverse of -1. So again we are going to take, let tan inverse of -1 is equals to x. Therefore tan x is equals to now -1. We know that tan of π/4, tan 45 क्या है 1 है, तो यहाँ पर अब हम लेंगे tan x is equals to minus tan π/4। 1 के जगह पर हमने क्या लिखा है tan π/4, लेकिन tan of minus theta is equals to minus tan theta है, तो अब हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया, tan x is equals to tan of minus π/4. Here -1 belongs to real number and minus π/4 belongs to open interval -π/2 to π/2. यहाँ पर जो एंगल है -π/4 वो tan इनवर्स के रेंज में आ रहा है, तो अब हम इसको प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ -1 कह सकते हैं। सो फॉर द गिवन एग्जाम्पल x is equals to -π/4 is the principal value of tan inverse of -1. Next example है, we have to find out the principal value of cos inverse of -half. यहाँ पर अब हम cos inverse of -half की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले, प्रिंसिपल वैल्यू। तो फिर से सेम वही कि let cos inverse of -half is equals to x, therefore cos x is equals to -half. अब हम माइनस को एज इट इज रखते हैं और हाफ ये कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस की कौन से एंगल के लिए वैल्यू है, तो cos π/3 इज हाफ। तो अब हम हाफ के जगह पर अगर cos π/3 लिखते हैं तो हमारा एग्जांपल हो जाएगा cos x इज इक्वल्स टू माइनस cos π/3। अब यहाँ पर cos ऑफ माइनस थीटा इज नॉट cos ऑफ माइनस cos थीटा, तो यहाँ पर हम माइनस साइन तो ऐसे ही एब्सॉर्ब नहीं कर सकते हैं, दोनों साइड की जो साइन है दोनों की सेम होनी चाहिए। अब हमारे एग्जाम्पल में cos x इज इक्वल्स टू माइनस cos π/3 आ गया है, तो साइड सेम करने के लिए हमें पता है cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस cos थीटा। तो अगर हम पाई में से π/3 को निकाल देंगे तो पाई माइनस π/3 इज 2π/3, तो यहाँ पर cos x इज इक्वल्स टू cos ऑफ 2π/3। cos ऑफ 2π/3 इज माइनस cos π/3। जो आप फॉर्मूला है ब्रैकेट में मैंने जो दिया है उसका यूज करके देखोगे तो आपको आ जाएगा कि cos ऑफ 2π/3 इज इक्वल्स टू माइनस cos π/3। इसीलिए हमने माइनस cos π/3 के जगह पर क्या लिया है, cos ऑफ 2π/3। सो हियर माइनस हाफ बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1, और अब जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है 2π/3 ये क्लोज इंटरवल 0 to π के बीच में है, इसलिए उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स ऑफ -half कह सकते हैं। अब इस एग्जांपल में हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ sin 5π/3। यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू की जगह पर कहा है फाइंड द वैल्यू। सो वी नो दैट साइन इनवर्स ऑफ sin x इज इक्वल्स टू x इफ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। जो नोट हमने लिखी थी उसमें ये हमने क्लियर किया है कि साइन इनवर्स ऑफ sin x इज इक्वल्स टू x इफ x बिलोंग टू द गिवन इंटरवल। लेकिन यहाँ पर दिए हुए एग्जाम्पल के लिए x की जो वैल्यू है वो 5π/3 है, और 5π/3 डज नॉट बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। सो ये जो वैल्यू है 5π/3 ये तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 5π/3 की वैल्यू नहीं हो सकती है, बट बाय पीरियोडिसिटी ऑफ साइन फंक्शन इस फंक्शन को 5π/3 को हम दिए हुए इंटरवल में ला सकते हैं। किस तरह से लाना है, 5π/3 कैन बी एक्सप्रेस एज 2π - π/3। सो साइन ऑफ 5π/3 कैन बी राइट एज साइन ऑफ 2π - π/3। सो इट इज साइन ऑफ 2π - थीटा इज माइनस साइन थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में गया और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस होता है,
तो इसलिए साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू माइनस साइन पाई बाय 3 एंड अगेन साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, तो उसका यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ माइनस पाई बाय 3। अब हम देखेंगे माइनस पाई बाय 3 बिलोंग्स टू द इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, तो ये वैल्यू हो सकता है साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 पाई अपॉन 3। इस दिए हुए एग्जाम्पल में आप डायरेक्टली 5 पाई अपॉन 3 नहीं लिख सकते हो क्योंकि वो दिए हुए रेंज में नहीं है, माइनस पाई बाय 2 के पाई बाय 2 के बीच में नहीं है, तो उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और उसके ऊपर से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो यू हैव टू सॉल्व द एग्जाम्पल ऑन दिस बाय सच टाइप। तो अब हमने पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनकी प्रिंसिपल वैल्यू, ग्राफ और एग्जाम्पल सॉल्व करके सब तरह से देख लिया है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे का टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।